Hello students, a very good morning to you. How are you? I hope you all okay. Dear students, remember you all are not sending your homework. It's not good for you. Clear? So you try to send your homework regularly. Whether it is chemistry, it is physics or biology. Clear? So now let's continue. Chapter 8 of class 10, that is how do organisms reproduce. In our last class, we have already drawn the diagram of a bisexual flower and we will see that how different parts of the flower help in reproduction. Some reproductive folds and some non-reproductive folds. Today we will study about pollination. So what is called pollination? Pollination means transfer of pollen grain from anther to stigma. Pollination we can define transfer of pollen grain from anther to stigma. So you know how an anther looks like and how the stigma looks like. If you see the diagram, this is the female part, this is stigma. Stigma is also called as the landing platform for pollen grain because pollen grain fall on stigma. This part is called as style and this part is called as ovary. Inside ovary, this is ovule or you can say embryo cell. So this is the female part. Now let's see the male part. This is the structure of anther. This is anther and this is filament. Inside the anther, there is pollen grain is formed and if you cut it transversely, the anther will look like this. They have 4 sacs. It is bilobed and dithecous. This is a bilobed and dithecous anther. Bilobed dithecous means this is a lobe, this is a lobe, and each lobe has 2 theca. This is a theca, this is a theca, this is a theca, this is a theca. So here 2 lobe, bilobe means 2 lobe, and each lobe contains two theca. Theca means bag or sac. So these are theca. This is also theca. 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 Theca means bag or sac like structure and they are extended till the end and inside this pollen grains are formed. And when it get matured, here is called the line of dehiscence. This line is called as the line of dehiscence. Line of dehiscence through which rupture occurs and the pollen grains are released. And these pollen grains go towards the stigma. This process is called as pollination. Transfer of pollen grain from anther to stigma. So pollen grains contain the male gamete. Pollen grain contain the male gamete. And inside one pollen grain, 2 male gamete is present. One pollen grain contains two male gametes. What is the importance of containing 2 male gametes? 2 male gametes. We will understand this in detail after pollination. So let's discuss about pollination as I have told you. Pollination means transfer of pollen grain from anther to stigma. So let's see in how many types pollination is divided. Pollination is divided into 2 types. One is self-pollination
and another is cross pollination. Pollination is divided into two types, as I have told you here. One is self pollination and another is cross pollination. Self pollination. What is self pollination? When pollination takes place, means when transfer of pollen grain from anther to stigma occurs in the same plant. When transfer of pollen grain from anther to stigma takes place in the same flower. क्लियर? जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा में होता है सेम फ्लावर के अंदर, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा, तो सेल्फ पोलिनेशन आप दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हो, इट टेक्स प्लेस इन बाइसेक्सुअल फ्लावर. क्लियर? क्योंकि अपने पोलिनेशन हो रहा है तो इसमें पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, नो पोलिनेटिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड. नो पोलिनेटिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड, मतलब पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, अपने आप ही जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो वो जो लाइन ऑफ डेसेंस मैंने बताया था वहां से रप्चर हो जाता है और पोलन ग्रेन क्या होता है अपने आप स्टिग्मा के ऊपर गिर जाता है. क्रॉस पोलिनेशन क्या है? व्हेन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, व्हेन ट्रांसफर ऑफ pollen grain occurs in different flower. इसका मतलब ये है कि एक फ्लावर एक डाली में है, दूसरे फ्लावर दूसरे डाली में है, या फिर दोनों ही फ्लावर दो अलग अलग प्लांट में है, उस केस में क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन होगा. और ये होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब या तो सिर्फ मेल फ्लावर होगा या तो फीमेल फ्लावर होगा. फिर से क्या लिख सकते हैं कि ये जो है ये पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होती है, मतलब पोलिनेशन के लिए अलग अलग पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होती है. मैं अभी बताती हूँ पोलिनेटिंग एजेंट्स कौन है. पोलिनेटिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड. पोलिनेटिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड. सो पोलिनेटिंग एजेंट्स are two types. Pollinating agents are two types. One is biotic, means living organisms. Another is abiotic, means non-living organisms. So in biotic we can take example of insects, birds, animals. And in abiotic we can take example of air and water. It means when cross pollination occurs, the pollinating agent may be a biotic agent, means a living organism, or an abiotic agent, means non-living organism. So in living organism, insects are the most dominating pollinating agents. Birds, animals also do pollination. And in abiotic, air and water. Some pollen grains transfer through water medium and some pollen grains transfer through air medium. That's why they are called as the pollinating agent. Again, during self pollination no variation occurs in the plant, means self pollinating plants do not show any variation, do not show any variation, but cross pollinating plants show variation. Why they show variation? Because the pollen grain either come from two different plants, that's why. So we can take example of papaya. Papaya contains unisexual flower, so it will bring variation. And also date palm. Date palm is also example of unisexual plant and unisexual flower in which cross pollination occurs. And self pollination occurs in which plants? You know about lily, hibiscus and mustard. So these are the plants in which we can see
self pollination occurs. So self pollination and cross pollination. Dear students, here I have told you pollination means transfer of pollen grain from anther to stigma. जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर मतलब मेल पार्ट से स्टिग्मा मतलब फीमेल पार्ट की तरफ मूव करता है उसको पोलिनेशन बोलते हैं। और ये पोलिनेशन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन जब पोलन ग्रेन अपने आप ही स्टिग्मा के ऊपर फॉल होता है और गिरता है, और क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, जब पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा के पास जाने के लिए किसी एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि पोलिनेटिंग एजेंट। फिर से मैंने बताया था कि ये जो है सेल्फ पोलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में होती है। क्यों? क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो अपने आप पोलन ग्रेन क्या होता है, मेल पार्ट से जाके फीमेल पार्ट में गिर जाता है। तो इसमें कोई भी पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि अपने आप होता है। पर क्रॉस पोलिनेशन में पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होता है। तो पोलिनेटिंग एजेंट जो है फिर से दो टाइप का हो गया, एक मैंने बताया बायोटिक और दूसरा मैंने बताया अबायोटिक। बायोटिक में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल्स, मेनी मोर ऑर्गेनिजम्स आल्सो इन्वॉल्व इन दिस। एंड अबायोटिक में कौन होता है, एयर एंड वाटर। सो जो पोलन ग्रेन्स होता है वो येलो कलर का होता है, येलो कलर पाउडरी लाइक स्ट्रक्चर होता है। और अगर इसको आप देखोगे माइक्रोस्कोप में तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। तो ये जो है ये पोलन ग्रेन है, और ईच पोलन ग्रेन कंटेन्स 2 मेल गैमेट्स। ये दोनों इसके अंदर प्रेजेंट मेल गैमेट्स हैं। और जो पोलन ग्रेन है वो हमेशा लार्ज नंबर में फॉर्मेशन होता है, प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स। क्यों? क्योंकि इसको ट्रांसफर होना होता है, तो ट्रांसफर के दौरान हो सकता है कुछ पोलन ग्रेन्स स्पॉइल्ड हो जाए, इसलिए पोलन ग्रेन हमेशा लार्ज नंबर में फॉर्मेशन होता है। पर जो फीमेल होता है, जैसे कि आपका कार्पेल और पिस्टिल बोलते हैं, वो हमेशा एक ही होता है। ठीक है, कभी कभी मैनी भी हो सकता है एक फ्लावर के अंदर, वो डिपेंड करता है फ्लावर के ऊपर वो किस तरह का फ्लावर है और कौन किस टाइप का सेक्स ऑर्गन इसमें प्रेजेंट है, मल्टीलोक्यूलेटेड है या फिर यूनिलोक्यूलेटेड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट टॉपिक पोलिनेशन के ऊपर। अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, पोलिनेशन के बाद आता है फर्टिलाइजेशन, और ये पोलिनेशन आता है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। पोलन ग्रेन का डायग्राम भी बना लिया। अब देखो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन को डिफाइन कैसे करोगे। फर्टिलाइजेशन इट इज डिफाइंड एज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। तो इसको क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जो है हमेशा फीमेल के अंदर होता है, और फीमेल होता है कांस्टेंट और स्टैटिक, कांस्टेंट और स्टैटिक। ये मूव नहीं करता है, मेल गैमेट जो है मूव करता है। अगर डायग्राम देखेंगे तो ये फीमेल पार्ट है, अब ये मैच्योर्ड फीमेल पार्ट है, मैच्योर्ड पिस्टिल और कार्पेल है। इसके अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होगा, यहाँ पे पोलन ग्रेन गिरा बहुत सारा। अब इसके अंदर 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होता है। इससे इसको लेबलिंग करना है। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ये वाला एम्ब्रियो सैक है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो सैक, और इसको ओव्यूल बोल सकते हैं। अब इसके अंदर ये जो 3 सेल देख रहे हो, ये तीनों सेल को बोलते हैं एंटीपोडर सेल्स। इनका कोई रोल नहीं होता है फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन के बाद ये गायब हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। यहाँ पे ये बीच में जो है इसका नाम है पोलर न्यूक्लियन। ठीक है, अब ये और ये इन दोनों को बोला जाता है, ये जो बीच में है ये एग सेल है, ये बीच वाला एग सेल है, और ये जो साइड में दोनों है ये और ये, इसको बोलते हैं सिनर्जिड्स। और ये बीच में जो है इसका नाम है एग सेल। अब जो
पोलन ग्रेन गिरेगा, जैसे ही पोलन ग्रेन गिरेगा ये पोलन ट्यूब रिलीज करेगा और ये पोलन ट्यूब के थ्रू, जैसे कि मैंने बताया था, एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट होता है, तो ये मेल गैमेट मूव करेंगे पोलन ट्यूब के थ्रू, कहाँ, एक सेल के पास, एक फ्यूज हो जाएगा एक सेल के साथ, एक फ्यूज हो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो एक सेल प्लस मेल गैमेट ये बनाएगा जाइगोट, और एक मेल गैमेट जो है फ्यूज हो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ और ये बनाएगा PEN। PEN मतलब होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद क्या होगा वो हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने अगले क्लास में, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा फिर आप याद नहीं रख पाओगे। बस ये डायग्राम को प्रैक्टिस करनी है घर पे 2-3 बार, और इन पार्ट्स को लेबलिंग करनी है कि ये स्टिग्मा है, इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन बोलते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन इसी के ऊपर गिरता है, फिर इसमें से केमिकल सिक्रेशन होता है और ये केमिकल अलाउ करता है पोलन ग्रेन को पोलन ट्यूब निकालने के लिए। और जैसे कि बताया था एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं, तो ये 2 मेल गैमेट मूव करते हैं पोलन ट्यूब के थ्रू, कहाँ, एम्ब्रियो सैक की तरफ। यहाँ पे होता है एक माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, इसके थ्रू ये एंटर करता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है एक सेल के साथ और एक फ्यूज हो जाता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। जो एक सेल के साथ फ्यूज होता है वो जाइगोट बनाता है, और जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ बनाता है फ्यूज होता है वो PEN बनाता है। इसके बारे में डिटेल में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना याद रखो, ठीक है।